ओके, सो जो लास्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक पर्सपेक्टिव देखा था, दैट इज द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जो हम लोग सॉफ्टवेयर में या बीएससी में कभी डिस्कस नहीं करते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैंने थोड़ा कुछ आपको एग्जाम्पल देने का ट्राई किया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग नोट्स पे आ रहे हैं। याद रखो, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे के 3 यूनिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डिटेल में अगर समझ में आएगा, तो आगे के यूनिट्स में आप कुछ अगर पढ़ रहे हैं ना, तो वो इजीली समझेगा। अगर आगे के 3 यूनिट्स की चीज़ें अगर आपको समझना है, तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है। ITSM इज़ नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट SDLC, वो हम लोगों ने ऑलरेडी SPM में भी किया है, SQA में भी कर रहे हैं। वही सेम अगर ITSM में करना है तो मतलब नहीं है। ITSM मतलब एक अलग से जो आपका 2 साल का 3 साल का कोर्स होता है, बहुत सारे बुक्स होते हैं। तो उस वो बुक्स जो है वो खाली आपको कौन सा टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, GUI क्या है, वो नहीं सिखाता है। वो ये फैक्टर्स के ऊपर फोकस करता है। यूनिट 1 भी अगर आप देखोगे, तो मैंने आपको टेक्निकल फैक्टर्स से बेटर ये वाले फैक्टर्स बताए, जहाँ पे बिजनेस में इंटरेक्शन कैसे होगा। ओके, सो विल हैव अ लुक एट दिस वीडियो, टेक्निकल पर्सपेक्टिव, एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर थियरी टॉपिक। You do business impact analysis, BIA. You'll have IT service continuity management plans, scenarios, test report. IT service continuity management plans, scenarios, test report. Start with IT service continuity management. IT service continuity management is all about supporting your business continuity management. So as an IT department, you have to support the business continuity management of your business continuity plans. So IT service continuity management is all about continuing the IT services even during risks like disasters. Any disasters if you have, so how do you continue the IT services? So you should have a backup plan. If something goes wrong with your IT service, how are you going to deliver these IT services? Like you can have a DRP site at a different location from where people will be operative, or you can have some backup or redundancy in place if something goes wrong because of a disaster. It's all about the IT service continuity. So the purpose of IT service continuity is to support overall BCM, business continuity management, by managing the risks that could seriously impact the IT services. The risks could be disasters. And the IT service provider can provide minimum agreed business continuity related service levels. We cannot provide the same service levels under normal conditions. Whatever we are providing under same service levels, we cannot provide during disasters. So we'll provide minimum agreed business continuity related service levels is what we'll be able to provide. So what are the objectives of IT service continuity management? Maintaining IT service continuity plans. According to the business continuity plan, BCP, you will develop your IT service continuity plans and you maintain them. And you complete, you regularly, you do the BIA exercises, business impact analysis. Business impact analysis, BIA, is nothing but you will analyze what is the impact on business if a particular service is unavailable. Based on that, you will identify the vital business functions, which are vital, which are not vital, business critical services you'll be identifying by doing BIA, business impact analysis. Business impact analysis means you'll be analyzing the impact on the, so you do a BIA exercise, you conduct risk analysis, because all disasters are risks. Okay. So you do a regular risk analysis and risk management exercises you do, and you provide guidance to all other areas of business and IT. Like during disasters, what are you supposed to do? Even for example, you have fire drills in your organization. So fire is a disaster. If fire happens, what should you do? What during that time, what are the process you have to follow? Similarly, during disasters related to IT, what is the process one has to follow? They'll provide some insight.
and they will ensure that the continuity and recovery mechanisms are put in place. So how do you continue the services during disasters, and how do you recover? You cannot continue the same services as you are providing your disaster. You have to recover from the disaster. How do you come up with the recovery mechanisms? And they will assess the impact of all the changes on the IT service continuity. They'll come up with the plans and IT recovery plans. So they ensure the implementation of proactive measures to improve the availability of services, right? What proactive measures are you going to take in order to improve the availability of services? They'll come up with some proactive measures as well. So they will design in such a way that your services can withstand these disasters or risks, and proactively they come up with some solutions. So the scope, they'll focus on the events that the business considers to be significant enough to be considered as a disaster. As per business, what is a disaster? Fire is a disaster. Power cut may be a disaster. Flood is a disaster. So what are the disasters? And they don't cover on long-term risk or minor technical faults, right? It's only a disaster which is short-lived. Long-term risks they don't consider, like your infrastructure is outdated. Then how are you going to manage the infrastructure? That's not their problem. Only during disasters, how do you react, right? Or minor technical faults they don't look into. And the IT service continuity depends upon the type of the business, organization, culture, and strategic direction. If the business is very critical, then they have IT service continuity in place, right? If there's a lot of impact, financial impact, if because of some disaster the services are not available, then their maturity will be at the next level. If it is a small business, even if the IT service is not available for a month, also then there is no impact. Then there's no point in providing the IT service continuity. You have to do a cost benefit analysis. If the IT service is not available, what is the loss impact we'll have? And to provide IT service continuity, how much you have to spend. If IT service is not available because of some disaster, let us say the impact is $100. If you want to provide IT service continuity, it will cost you $200. There's no point in giving IT service continuity there. You have to do a cost benefit analysis, the type of the business. Your business is not so dependent on IT. Culture of the organization. See, even because IT service continuity comes at a cost. Having a redundancy or operating from a different location, it comes at a cost. So the culture of the organization also plays a major role when it comes to IT service continuity. They should have that culture. For example, if you take Google, they have very high IT service continuity in place. So even if any of the services are unavailable, they have the continuity in place. They have that culture actually. They have that culture. Even though you have money, if you don't have such a culture that we have to provide excellent services to our customers, then IT service continuity may not be in place. What is the value to the business? It supports the business continuity process, or business continuity plans, or business continuity strategy. And it helps in recovering the business impact, reducing the impact of the risks. And even the recovery also will be done cost justified, if you have IT service continuity. So providing IT service continuity in a cost justifiable manner is very, very important. So this is how the IT service continuity is overlapping with business continuity. A single slide which will tell you all about the IT service continuity. So you have a business continuity management, BCM. See, BCM is the headache of the business. Suppose your IT department in bank. So bank will have their business continuity plans. If some disaster happens, from where these bank employees should work, they have their own plans actually. So that's the business continuity management. Accordingly, you will align your IT service continuity management. So if you are starting your IT service continuity in your organization for the first time, first you do a policy setting and you do the scope definition. What falls under your scope? And then you will take it up as a project. Setting up the entire IT service continuity in place, you will initiate as a project. And we have business continuity strategy. They develop business people, they develop their continuity strategy. Then you collect the requirements accordingly and you develop your strategy. For example, business, if something goes wrong in Paris branch, they want to continue the services from New York. That is their strategy. Accordingly, you'll collect those requirements. Oh, you want to get the setup ready at New York. So you will collect the requirements related to that and you will develop your strategy. During that time, you do business impact analysis.
See, we cannot provide services, or you cannot provide IT service, every IT service that is there in the organization, what you are providing. Only business critical related IT services only during continuity we provide. Even, for example, if you take a power backup in our house, a generator, you're having a generator in your house, or let us say you have a inverter in your house. During a disaster called power cut, we don't continue the services for every lighting point in your house. Only important lighting points like TV, lights, fan. I said deliberately TV because television has become more important than anything. So only those lighting points, you will work on that. No, so when you do a business impact analysis, identify the vital business functions. Only for the vital business functions, you will provide the services. You do risk assessment, and accordingly, you will develop your IT service continuity strategy. So according to the business continuity strategy, you will be developing IT service continuity strategy. You have business continuity. According to the strategy, business, they develop their business continuity plans, and you will implement your IT service continuity plans. So you do the implementation. So you will develop IT service continuity plans, develop IT plans, recovery plans and procedures. You do the organization planning, you do the risk reduction and recovery, initial testing. During this time, you will put everything in place and you try to test it. So you have a setup ready in UAC. So you do the initial testing related to that. No, whether everything once you implement, whether it's working fine or not. And business will do their ongoing operations. You will be doing your ongoing operations. Like what is this ongoing operations? What activities you do? You will create awareness by conducting training and educating the users. So during disasters, this is the approach you have to follow. So there will be few people working from home. So you have to get ready during disasters to work from home. You will come up with the education. You do the reviews. You will audit whether things are working properly or not. You do the testing, and then you come up with the change management. If any changes has to be made to this IT service continuity plans, you do it through change management. And if some disaster happens, invocation will happen. Invocation will happen through business continuity. So business will say, yes, this is a disaster. Guys, we need your help. So then you will invoke your IT service continuity plan according to the business continuity plan, and you will implement. So this is the initiation. We discussed requirements and strategy. BIA, we discussed IT service continuity strategy. And we have something called IT service continuity management recovery options. How do you recover? You'll have a manual workaround. Sometimes, if system goes down, you'll set up manually another system and you'll see that the work is going on. Manual workarounds. Reciprocal arrangements. Reciprocal arrangements are the arrangements where you have a tie-up with another organization of similar setup. So similar setup, you have another organization, and you'll do a reciprocal setup. So if something goes wrong in my company, from your company I will operate, and vice versa. I will reciprocate. If something happens in your house, I will come to you. You can come to my house. If something happens goes wrong in my house, I'll come to your house. It's a reciprocal arrangement. Gradual recovery is also called as cold standby. There's no urgency. There's nothing business critical. Even you can do the recovery after 15 days or 1 month. Right? Still, you can live with that impact. Intermediate recovery, warm standby. Maybe within a week's time, it has to be done by. Fast recovery is hot standby. Immediately, within less than 5 hours, less than 2 hours, less than 1 hour, you have to recover. That's a fast recovery, right? Immediate recovery, or it's a very immediate recovery, like mirroring. It's not hard standby. It's a mirroring actually. So if this system goes down, immediately the other system will be up and running. So you have a load balancing or you have a failover in place. So immediately the system has to recover. That's immediate recovery, right? So we discussed about the implementation, right? And during implementation, you have to look into the organizational planning.
right? During disasters, what is the role of executives? Who will coordinate? What are the roles? Right? Who will coordinate? And what are the different recovery activities and roles you perform? Each person will perform. So there will be a disaster recovery manager. Under him, there will be 2 people. So what is the responsibility of each individual? You will come up with the recovery activities. And you do testing as part of implementation. 4 types of testings you have. Walkthrough test. Walkthrough test means you don't test anything, you just run through the documentation. So you will walk through the documentation and you will decide on whether this particular thing will work or not. So when someone reads during the disaster, what are you going to do? So they will review the documentation and they make changes to the documentation. That's called a walkthrough test. They don't test anything physically. It's only the documentation evaluation will be done. Full test, end to end full test will be done. They try to do the complete testing. Partial tests, partial some part, they do it. Scenario test, they'll create some scenarios, defined scenarios. For example, if 1,000 users log in, what will happen? So they'll create a scenario, they'll create a load of 1,000 users. If required, they'll ask 1,000 users to log in. So does it lead to any disaster? 1,000 users, if they are logging in concurrently, does it create any disaster? That's called a scenario testing. They'll create a scenario. And once, as we discussed, it's an ongoing operation. They educate the users what to do during disasters. They review their plans. They do the testing. If any changes has to be made, if something is not working, or if something has to be changed as per the context, then they get it done through change management. And then the invocation. So invocation, normally senior management will do the invocation. It's not that someone at the junior level, they declare it as a disaster. It's a senior management team who should declare it as a disaster. Normally there will be a crisis management team which comprises senior managers from the business and support department. That's the invocation. And what are the triggers for this IT service continuity management process? When business needs changes or when new services are coming, right? Or when there are agreements are getting changed, when the business plans are changing, business strategies are changing, the designs change, strategies change. During major incidents, if some disaster happens, it's a major incident. Then immediately the IT service continuity, they will pitch in and they try to save the situation. And during change management, any assessment of changes, because sometimes the changes may lead to disasters. Changes may lead to disasters, right? So assessment of changes, board meetings, during board meetings, they will be part of the board meetings to decide when to invoke. And any new risk is identified, and any VBF identification, business impact analysis, testing, any testing they are doing related to the continuity and recovery plans. Right? You'll have this process will pitch in and they trigger. Interfaces. So which of the process this IT service continuity interface, which most of the process will interface, like availability management, security management, capacity management, because security threats can be disaster. Capacity. So during disasters, do we have sufficient capacity? We have to do a capacity planning. So during disasters also. Problem management, incident management. Some incidents may lead to disasters. SLM targets, service level. During disasters, what are the SLAs? Change management, because changes can become disasters, right? CMS, configuration management system for SCCM, service asset and configuration management. And what are the inputs and outputs you require? Inputs, you need the business strategies. You need the IT information, business information. You need the CMS information, configuration management system. You need a lot of information to plan your IT service continuity. And what outputs you'll get? IT service continuity management policies, strategies, the BAA and risk analysis. You do a risk analysis, risk management. You do business impact analysis, BAA. You'll have IT service continuity management plans, scenarios, test reports, reviews. These are the various outputs you get as part of IT service continuity.
what are the CSS and APIs like KPIs? You have to deliver the IT services during disasters, which is very important. Then you have to recover. During disaster, you will be delivering the IT services, but you cannot live like that forever. You have to recover from that. And how much awareness are you creating? Many organizations, the people, the business or the IT doesn't know what to do during disasters. From where they will be operative. They don't have the information. So it's very, very important that you have to create the awareness throughout the organization. And what information normally these guys will use are the BIA information, business impact analysis information, the risk register, the latest version of BCM, business country management strategy, business country plans, test results, test schedule, IT service country management plans, and recovery facilities, suppliers and partners during disasters, which suppliers or vendors you're dependent on, recovery agreements, what is the spare equipment you have, alternative equipment you have during disasters, what is the backup and recovery process, schedules, what systems you have the recovery systems in place, and media like your OS, all these things you will store in a separate location. So if something goes wrong, immediately you need to have the media, the softwares, the applications you need to have. So you will have all this information stored. And what are the challenges associated with IT service continuity management? When business doesn't have their continuity plans, your job becomes a challenge. According to the business continuity plan or business continuity management, you will plan your IT service continuity management. But if they don't have a plan, then your job becomes a challenge. And if getting funding is a big challenge, right? Sometimes deciding whether it is important or not, whether you are wasting money or it's yes, there's a benefit in it, deciding on that is a challenge. And business perception that continuity is IT responsibility. They think during disasters, IT will have IT service continuity plan, but they don't have any business continuity plan. So without they don't have any business continuity plan in place. They think even that is the responsibility of IT, which is not the case. We provide an alternative setup only during disasters according to your business plan. If you plan to provide services from moon, Okay, so something about बिजनेस कंटिन्यूटी वाला जो हम लोगों का पॉइंट था. अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द पॉइंट्स विच वर डिस्कस्ड हियर, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन ही हो रहा है. देयर माइट बी सम अदर फैक्टर्स, और वो अदर फैक्टर्स क्या है वो समझ के आप कैसे उसको हैंडल करेंगे ना, यही हम लोग को यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है. सो हमेशा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आई मीन ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि हाँ हम लोग सिर्फ यहाँ पे कोई एक ब्रेकडाउन हुआ है और वो वापस हम लोग बहुत इजीली कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर बिजनेस में अगर कहीं पे कोई चेंज होता है तो चेंजेस कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, कितने लेवल तक अप्लाई करेंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स. अब सर्विस चेंजेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको जो एक रियल एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ था. रिमेंबर कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है और वो चेंजेस अगर आपने प्रॉपर अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, कैसे चीज़ें वर्कआउट होता है, कैसे हम लोगों को प्रॉब्लम होता है. ठीक है, अब आपने जो एक पीएनबी बैंक का जो इशू था वो तो आपने देखा ही रहेगा. तो अब पीएनबी बैंक का जो इशू था वहाँ पे जो बैंक के सॉफ्टवेयर जो थे उसमें क्या प्रॉब्लम आया था एग्जैक्टली, और उससे हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि सॉफ्टवेयर में जो कुछ अगर पॉइंट्स रहेंगे वो आपके कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं. अब आप देखो, जैसे मैंने आज आपको एक इकोनॉमिक फैक्टर जो बताया, सॉफ्टवेयर्स के लिए वो इकोनॉमिक फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी रहता है. बिकॉज अगर आप वो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है
in our softwares as well. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों पे ही फोकस करना है. हम वी ऑल्सो सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स एट इंटरनेशनल लेवल. और वो रूल्स अगर आप नहीं समझेंगे तो एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन डेफिनेटली हो सकता है. तो वो ब्रेकडाउन ना हो, वही हम लोगों को समझने की ज़रूरत है. ओके, सो यहाँ पे पीएनबी बैंक नीरव मोदी वाला जो केस हुआ था, वो हम लोगों का ये बिजनेस सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में कैसे वर्कआउट करेगा, चेंज मैनेजमेंट कैसे अप्लाई करना है, और वो अगर चेंजेस अगर आपने अप्लाई नहीं किए तो क्या होगा. ठीक है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. आपने खाली थोड़ा बहुत समझा रहेगा, न्यूज में देखा रहेगा टेक्निकली क्या प्रॉब्लम्स होता है और उसको आप कैसे समझेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस. एक बार ये पॉइंट अगर आपको समझ में आएगा, उसके बाद में थियरी में कुछ नया टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो प्रॉपर समझेगा. क्योंकि अगर आपने चेंजेस अगर प्रॉपरली अप्लाई नहीं किए तो आपके बिजनेस को कितना बड़ा लॉस हो सकता है. वी कैन हैव अ एग्जांपल फ्रॉम पीएनबी. देखो ध्यान से. रिकॉर्डेड वेलकम टू ऑल. आपको मेरी बनाई वीडियोस में टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और यहाँ पर हम लोग 2-3 दिन से बहुत ज्यादा न्यूज में देख रहे हैं कि एक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, और कोई नीरव मोदी का भी नाम आ रहा है इसमें. और इस फ्रॉड की जो रिपोर्टिंग हुई है वो लगभग आपके 1 वीक पहले हुई है. तो इस फ्रॉड का क्या ओवरऑल क्या फिगर. ओके, सॉरी, आई विल जस्ट शेयर द वन. ओके, जस्ट 1 मिनट. तो यहाँ पे हम लोगों का जो पीएनबी स्कैम हुआ था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे वो हम लोगों को समझना है. जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू. ओके, सो वील हैव अ लुक एट दिस. ध्यान. नमस्कार. आज हम बात करेंगे कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई के ब्राइडी हाउस ब्रांच में 11,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया. इस फ्रॉड में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया उसका नाम है बायर्स क्रेडिट. तो पहले बायर्स क्रेडिट क्या होता है इसे समझते हैं. बायर्स क्रेडिट मतलब इंपोर्ट यानी आयात कर रहे सामान का पेमेंट करने के लिए किसी बैंक की फॉरेन ब्रांच से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना. चलो तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. मान लीजिए कि आपका डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है और दूसरी कंट्रीज के सप्लायर से आप डायमंड्स इंपोर्ट यानी आयात करते हो. नाउ सप्लायर्स को पे करने के लिए इंपोर्टर्स यूजुअली बायर्स क्रेडिट लेते हैं, दैट इज किसी बैंक के विदेशी ब्रांच से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं. अब इंपोर्टर सप्लायर को पे करने के लिए बायर्स क्रेडिट क्यों लेते हैं इसे समझते हैं. इंटरनेशनल डीलिंग्स यानी इंटरनेशनल कारोबार में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कई बार एक दूसरे को जानते नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं. तो अगर सप्लायर ने सामान भेज दिया है पर इंपोर्टर ने पैसे ही नहीं दिए तो, या इंपोर्टर ने पेमेंट कर दिया है पर सप्लायर ने सामान ही नहीं भेजा तो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए यानी ट्रेड को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बैंकिंग सिस्टम को ट्रेड में शामिल करते हैं. तो जब सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिलीवरी देगा तो इंपोर्टर की बैंक सप्लायर को टाइम पर पे करती है. तो इस तरह बायर्स क्रेडिट की वजह से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है. और दूसरा, बायर्स क्रेडिट में इंपोर्टर फॉरेन बैंक से लोन लेता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट यूजुअली इंडिया में चल रहे इंटरेस्ट रेट से कम होते हैं. नाउ आपने किसी फॉरेन यानी दूसरे देश के सप्लायर को डायमंड की ऑर्डर दी है तो सप्लायर आपको उस ऑर्डर की इनवॉइस भेजेगा. उस सप्लायर को पे करने के लिए अगर आपको बायर्स क्रेडिट लेना है तो उसके लिए पहले आपको आपकी लोकल बैंक को अप्रोच करना होगा. मान लेते कि आपका मुंबई की पंजाब नेशनल बैंक दैट इज पीएनबी में अकाउंट है और बायर्स क्रेडिट के लिए आपने पंजाब नेशनल बैंक दैट इज पीएनबी को अप्रोच किया और पीएनबी के ऑफिशियल्स को अपने सप्लायर ने भेजी हुई इनवॉइस और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि हमने फॉरेन के सप्लायर को डायमंड्स की ऑर्डर दी है और सप्लायर को पे करने के लिए हमें बायर्स क्रेडिट चाहिए. तो पीएनबी उस पर अपना ड्यू डिलीजेंस करेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करेगी और आपका क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करेगी. अब मान लीजिए कि आपको बायर्स क्रेडिट के जरिए सप्लायर को पे करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए चाहिए. तो पीएनबी आपसे आपके क्रेडिट वर्दीनेस के अनुसार कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कहेगी, यानी बैंक के पास कुछ कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए कहेगी. क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट करते हो यानी लोन रिपे नहीं करते हो तो ये 1,000 करोड़ रुपए पीएनबी को ही इंटरेस्ट के साथ उस फॉरेन बैंक को रिपे करने होंगे. तो इंपोर्टर की बैंक दैट इज पीएनबी यहाँ पर इंपोर्टर और किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच के बीच मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम कर रही है और उसके लिए उसे कुछ कमीशन मिलता है.
आपसे कोलैटरल लेने के बाद पीएनबी फॉरेन की जिस बैंक ब्रांच से आपको लोन चाहिए उसे एलओयू दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करेगी। एलओयू एक गारंटी होती है जिसके जरिए इंपोर्टर की बैंक फॉरेन बैंक को यह गारंटी देती है कि उन्हें उस लोन की प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ तय किए हुए वक्त में मिल जाएगी। तो अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट करता है यानी लोन रिपे नहीं करता है तो उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इंपोर्टर की बैंक को उस फॉरेन बैंक को रिपे करना होगा। तो किसी बैंक की फॉरेन ब्रांच इंपोर्टर की बैंक ने दिए हुए एलओयू के आधार पर इंपोर्टर को बायर्स क्रेडिट देती है। मान लेते हैं कि आप एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच से बायर्स क्रेडिट लेते हो, तो पीएनबी एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को एलओयू इशू करेगी और स्विफ्ट के जरिए एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को आपको 1000 करोड़ का बायर्स क्रेडिट देने का इंस्ट्रक्शन देगी। नाउ देखो यहाँ पे ये जो स्विफ्ट दिया है ना, ये स्विफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो इसके बाद में ये स्विफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द सॉफ्टवेयर जो पीएनबी के सॉफ्टवेयर के साथ मैच नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। ध्यान से देखो, उसके बाद में मैं आपको ये वाला पॉइंट जो है वो बताता हूँ। स्विफ्ट दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सिक्योर्ड मैसेजिंग नेटवर्क की तरह होता है जिसके जरिए बैंक्स एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन भेजती है, जिसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है। पीएनबी से स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन मिलते ही एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच 1000 करोड़ का बायर्स क्रेडिट पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। इंडियन बैंक का किसी फॉरेन बैंक में जो अकाउंट होता है उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार सामान की डिलीवरी होने पर पीएनबी अपने नोस्ट्रो अकाउंट से वो 1000 करोड़ रुपए उस सप्लायर को ट्रांसफर करेगी और फिर आपको ये 1000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ तय किए हुए टाइम पीरियड में पीएनबी में डिपॉजिट करने होंगे, जिसके बाद पीएनबी वो 1000 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को ट्रांसफर करेगी। तो अगर आप 1000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ रिपे नहीं करते हो तो पीएनबी को ये 1000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को देने होंगे, क्योंकि पीएनबी ने एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को एलओयू इशू करके आपके रिपेमेंट की गारंटी दी थी। अब पीएनबी और नीरव मोदी के एक्चुअल केस पर आते हैं। डायमंड बिजनेसमैन नीरव मोदी इंपोर्टिंग के लिए मुंबई के पीएनबी के ब्राडी हाउस ब्रांच में बायर्स क्रेडिट के लिए अप्रोच करता था और पीएनबी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिली भगत करके सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए बिना फ्रॉडुलेंटली पीएनबी के उन ऑफिशियल्स से एक्सिस और इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच को एलओयूज इशू करवाता था। तो इस तरह पीएनबी के उन दो ऑफिशियल्स ने करीब 11,000 करोड़ के एलओयूज फ्रॉडुलेंट तरीके से इशू किए। पीएनबी के दो ऑफिशियल्स ने बैंक के प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए फ्रॉडुलेंट तरीके से एलओयूज इशू किए और नीरव मोदी की कंपनीज के लिए एक्सिस और इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच से बायर्स क्रेडिट अरेंज किया। जब कोई बैंक एलओयू इशू करती है, उस एलओयू की बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन दैट इज सीबीएस में एंट्री करनी होती है, पर पीएनबी के इन दो ऑफिशियल्स ने सीबीएस पर एंट्री किए बिना एलओयूज इशू किए। पीएनबी के ऑफिशियल्स स्विफ्ट के जरिए एक्सिस और इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच को नीरव मोदी की कंपनीज को बायर्स क्रेडिट देने की इंस्ट्रक्शन भेजते थे। स्विफ्ट जिसके जरिए बैंक्स एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन भेजती है वो यूजुअली सीबीएस से लिंक रहता है, पर पीएनबी के केस में स्विफ्ट सीबीएस से लिंक नहीं था और फ्रॉडस्टर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आईटीएसएम में आपको ये भी देखना है आपका सिस्टम ऑलरेडी ब्रेकडाउन है क्या। अब कभी कभी क्या होता है, वो ब्रेकडाउन जो है ना वो आपको बाद में पता चलता है, जैसे पीएनबी केस में हुआ जहाँ पे इंटरनेशनली हम लोग के पास कोर बैंक मतलब इंटरनेशनली हम लोग के पास स्विफ्ट एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ में लिंक्ड होना चाहिए। मतलब स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। तो आपके जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो होगा वो उसके टर्म्स कंडीशन उसके कंडीशन के हिसाब से कनेक्टेड होना चाहिए और उसके प्रिंसिपल्स पे बना हुआ होना चाहिए। अब जो डेवलपर्स थे पीएनबी बैंक के या जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया था उनको ये चीज़ पता नहीं थी। दैट इज वो टेक्निकली उन्होंने बनाया, वो करेक्ट चीज़ बनाया था, लेकिन वो स्विफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं था। तो जब अगर मैं एलओयू जब अगर पीएनबी एलओयू इशू कर रहा था उसका इंफॉर्मेशन वो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में नहीं भी डाल रहे थे तो भी वो दूसरे एलओयूज इशू कर पा रहे थे। तो आप देखो कि यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी मैच नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स पे अगर ट्रू मतलब जो स्विफ्ट का जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क था वो आपने अपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं किया था, विच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड।
आपको वो पता ही नहीं चला। मतलब आपका सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट या सर्विस मैनेजमेंट या फिर ब्रेकडाउन मैनेजमेंट या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ये जो फैक्टर्स हम लोग थियोरेटिकली डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर प्रैक्टिकली पीएनबी में काम नहीं हुआ, एंड हेंस दे फेस्ड 10 to 11,000 और 12,000 करोड़ ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ वन पर्सन। जिनके अब देखो ये एम्प्लॉयज जिन्होंने नीरव मोदी के साथ में मिलके ये काम किया है, वो एम्प्लॉयज का सैलरी मंथली आप 1 लाख 2 लाख भी अगर पकड़ते हैं तो मैक्सिमम यू कैन ask them to repay the amount is 1 crore 2 crore, maximum you can ask for 3 crores या 5 करोड़ पकड़ो, चलो उससे ज्यादा तो वो रीपे नहीं कर पाएंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो एम्प्लॉयज के लिए रीपे होना पॉसिबल ही नहीं है। आप उनको जेल में भी डाल दो, ठीक है, केस किया आपने, अलग बात है, लेकिन जो पैसा बैंक का गया, हाउ यू आर गोइंग टू रीपे दैट, दैट इज द ब्रेकडाउन सिचुएशन। और वो ब्रेकडाउन सिचुएशन पहले से अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया रहता तो ये ब्रेकडाउन ही नहीं होता था। गेटिंग सो समटाइम्स कोई ऐसे बहुत बड़े ब्रेकडाउन में सर्विस कंटिन्यूटी मेंटेन करना या चलाते रहना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो। तो हम लोगों को बहुत प्रॉपरली ITSM यही आपको बात बताता है कि आपको सिर्फ IT का नॉलेज नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे तो जिसने कोर बैंकिंग सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर बनाया था फॉर PNB के लिए, उनको ये पता नहीं था कि स्विफ्ट फ्रेमवर्क के क्या स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस है जो आपको अपने सॉफ्टवेयर में इनहेरिट करने पड़ेंगे सो दैट ब्रेकडाउन सिचुएशंस ना आए। देखो ध्यान से वापस, स्विफ्ट को इंस्ट्रक्शन भेजती है वो यूजुअली CBS से लिंक रहता है, पर PNB के केस में स्विफ्ट CBS से लिंक नहीं था और फ्रॉडस्टर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। स्विफ्ट CBS से लिंक न होने की वजह से और LOUs की CBS में एंट्री न होने की वजह से PNB के कंट्रोलर्स और ऑडिटर्स को इन फ्रॉडुलेंटली इशू किए गए LOUs के बारे में पता नहीं चला। अभी पिछले महीने यानी जनवरी 2018 में नीरव मोदी की कंपनीज डायमंड आरज, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड ने PNB को बायर्स क्रेडिट अरेंज करने के लिए कहा, लेकिन तब उन 2 PNB ऑफिशियल्स में से एक ऑफिशियल जो कि डेप्यूटी मैनेजर था वो रिटायर हो चुका था और उसकी जगह पर कोई नए डेप्यूटी मैनेजर आए थे। तो उस नए बैंक ऑफिशियल ने उन्हें जितनी अमाउंट का बायर्स क्रेडिट चाहिए उतनी कैश बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए कहा, जिस पर नीरव मोदी की कंपनीज ने बैंक ऑफिशियल से कहा कि वो पहले भी PNB से बिना कोलैटरल इस तरह की फैसिलिटी ले चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें कोलैटरल के बिना बायर्स क्रेडिट दिया जाए। पर PNB के उस ऑफिशियल को नीरव मोदी की कंपनीज के उन पुराने LOUs का सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और इस पर थोड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद PNB को इस सारे फ्रॉड के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि ये फ्रॉड 2011 से चालू है और इन बायर्स क्रेडिट का रीपेमेंट नीरव मोदी और उसकी कंपनीज ने नहीं किया है, जिसकी लायबिलिटी अब PNB पर आ गई है। उसके बाद PNB ने नीरव मोदी, उसका भाई निशाल मोदी, उसकी वाइफ अमी मोदी और नीरव मोदी के मैटरनल अंकल यानी मामा मेहुल चोकसी, जो कि सब इन कंपनीज के पार्टनर्स थे, उनके खिलाफ CBI के साथ कंप्लेंट फाइल की। इस स्कैम का मुख्य सूत्रधार नीरव मोदी है, जिसका डायमंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है और 2017 में फोर्ब्स के अनुसार नीरव मोदी इंडिया का 57th रिचेस्ट पर्सन था। नीरव मोदी ओके, सो मेन केस जो था आई होप आपको समझ में आया। तो अब यहाँ पे मेन आपको जो समझाना था ये केस स्टडी में से वो क्या था कि जब अगर हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और ITSM के कुछ पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अगर आपके डेवलपर्स ने अगर प्रॉपर नहीं समझे तो ये प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ITSM का मतलब ये नहीं रहता है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या उस पे कैसे वर्क करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है वो सिखाऊं, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे उसको अलग अलग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, ये सबसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी रहता है। ओके, आई होप मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो? No, sir. No, sir. No doubts, sir. Okay, I hope people are listening to me. All guys. Okay, I'll give you one more example. जहाँ पे आप देखो कि
जो कंपनीज होते हैं उसमें ये सेम फ्रॉड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं लोगों को। और वो प्रॉब्लम्स क्या है वही हम लोग समझेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर अगर अप टू द मार्क नहीं है तो वो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। दिस आर एग्जाम्पल्स, ओके, जो हम लोग को कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आगे के टॉपिक समझने के लिए। ध्यान से लिखो। नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे। 1987 में वी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले वी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था। 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिव प्रॉपर्टी जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। Every day you use multiple communication channels to talk to your clients. Why not use प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके नाम पर जमीन खरीदता था। उनके फार्म में काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 4 से 5 हज़ार रुपए थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया। मेट्रो मैन श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था। राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नजदीक की जमीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट एटसेट्रा और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। सत्यम कंप्यूटर का ज्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा। राजू ने 7500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी। फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया, बट वेयर इज द प्रॉफिट? उस फेक सेल से मिला हुआ प्रॉफिट कहाँ है? तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर फेक सेल से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं। कई सालों तक राजू इसी तरह लगातार सेल्स, प्रॉफिट्स और बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। 1999 में सत्यम में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 24% थी। वहां से वो कम होते होते 2008 की एंडिंग तक सिर्फ 2% तक आ गई थी और उन पैसों का उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया। जैसे जैसे सत्यम का ऑपरेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे एक्चुअल फिगर्स और राजू ने दिखाई झूठी फिगर्स के बीच का फासला बढ़ता गया और वो फासला एक बड़ी अमाउंट बन गया। 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में बहुत स्लो डाउन यानी मंदी आई और अच्छी प्राइस पर प्रॉपर्टीज बेचकर एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स का गैप फिल करने का राजू का प्लान फेल हो गया। सो देखो, अभी हम लोगों ने जो यूएस का एग्जाम्पल लिया था ना, हाउसिंग क्राइसिस वाला, मैंने आपको क्या बोला था कि हाउसिंग क्राइसिस की वजह से जो हाउस के प्राइसेस थे वो गिर गए, बराबर है। तो उसका सेम इम्पैक्ट इंडिया पे भी आया था। तो जब इंडिया पे इम्पैक्ट आया तो ये देखो, ये जो कंपनीज थी जिन्होंने जो ग्रोथ पीरियड में
ऐसे स्कैम्स किए थे जो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाया आपका, और वो मेन प्रॉब्लम हुआ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस का हाउसिंग क्राइसिस जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, ध्यान से देखो। उसके बाद गैप फिल करने के लिए राजू ने नया प्लान बनाया। इस प्लान के अनुसार सत्यम कंप्यूटर मेटस इंफ्रा के 51% स्टेक्स और मेटस प्रॉपर्टीज के 100% स्टेक्स खरीदने वाली थी, और राजू ने कहा था कि यह पैसा मेटस के प्रमोटर्स को जाएगा। मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज ये दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। सत्यम को उल्टा पढ़ोगे तो मेटस बन जाता है। राजू ने सोचा कि इस डील से ये दिखाने में मदद होगी कि एक्चुअल फिगर्स और झूठी फिगर्स में जो गैप था उन पैसों से इन दो कंपनीज को खरीदा गया है, जबकि एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। इस तरह एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स के बीच का गैप फिल हो जाएगा। 16 दिसंबर 2008 को सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्लान को तुरंत मंजूरी दी। शेयर होल्डर्स की परमिशन लिए बिना ही राजू ने इस डील को सैंक्शन कर दिया। लेकिन सत्यम के इन्वेस्टर्स को यह डिसीजन कुछ ठीक नहीं लगी, स्पेशली सत्यम के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। सत्यम के इस डिसीजन के बाद सत्यम के स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई। यूएस के एक इन्वेस्टर ने सत्यम के खिलाफ लॉसूट भी फाइल किया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सत्यम के स्टॉक में 55% की गिरावट हुई, जिसके दबाव में आकर सत्यम ने मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रा को अक्वायर करने का प्लान रद्द कर। गर्मी से परेशान? Get 2x fast cooling with Urban Company AC Servicing. Book now. कर दिया। जैसे ही ये प्लान फेल हो गया, सत्यम के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। गैप फिल करने का राजू के पास ये आखिरी ऑप्शन था। उसे भी फेल होते हुए देखकर राजू ने 7 जनवरी 2009 को ये कन्फेस यानी कबूल कर दिया कि सत्यम कंप्यूटर पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे राजू ने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्फ्लेट किए थे। आप यहाँ देख सकते हो कि राजू ने दिखाया हुआ। ओके, सो अब इसके आगे जो पॉइंट है वो हम लोगों को उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर था वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाया, और उसमें जो लूपहोल्स थे वो आप नहीं समझ पाए, गेटिंग। और उसकी वजह से क्या हुआ कि कोई एक बैंक में आपकी कंपनी में फ्रॉड करके चले गया, और अब आपके जो बिजनेसेस या आपके कनेक्शंस इनके साथ कनेक्टेड है, तो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दैट सिचुएशन। यहाँ पे दिस आर द पॉइंट्स जहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेज करने की ज़रूरत होती है, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो आप देखो कि 2008 के हाउसिंग क्राइसिस जो यूएस में हुए थे उसकी वजह से सत्यम फेल हो गया, जो उसने होना था, लेकिन जो सक्सेस हो जाता था वो फेल हो गया। सो मतलब वर्ल्ड में कहीं होने वाला एक्शन का रिएक्शन आपके ऊपर होता है, तो ये सेम चीज़ आपके कंपनी पे होगा। आप जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर भी होगा। सो वी सपोज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एट दैट फैक्टर। ओके, आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत फ्रेशली ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी एनालिसिस वाला पार्ट है और उसके जो की एक्टिविटीज़ है इस पे फोकस कराऊंगा, ठीक है। इंटरनल्स के बाद में जब हम लोग मिलेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट वीक। सो वो टाइम पे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज मैं अभी आगे नहीं बता रहा हूँ। आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो, इंटरनल रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो आप। एनीवन, एनी डाउट्स? एंड रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी बोला है इंटरनल्स में आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जस्ट थियरी कि ये डेफिनेशन है, ये है। आपको जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ चीज़ें टेक्निकली लॉजिकली मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, वैसे ही चीज़ें वहाँ पे वर्कआउट होंगे, ठीक है। एनीवन, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है। सो विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर। थोड़े टाइम में आई विल जस्ट